हेलो स्टूडेंट्स, सीजी मेंटर्स के ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सपनों से सिलेक्शन तक की सीरीज में आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है मिस्टर प्रणव। इन्होंने सेबी ग्रेड 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कंग्रेचुलेशन प्रणव। एंड Thank you, sir. Thank you a lot. Thanks a lot. कैसा फील हो रहा है अभी? Yes, to be honest, everything is yet to sink in. Lots of congratulatory messages from teachers, from my friends, family members. Everything is coming in a very short span of time. So I'm yet to absorb everything. ओके, मैं ऑडियंस को थोड़ा बता देता हूँ कि प्रणव ने ड्यूअल डिग्री की है आईआईटी बॉम्बे से, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। Correct. उसके बाद ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, स्पेसिफिकली आईएफएससीए, पीएफआरडीए। इन्होंने अपीयर किया था पीएफआरडीए में। इंटरव्यू यू मिस्ड फाइनल कट ऑफ 1 मार्क्स। Yes. ओके Final cutoff. I gave interview. Final cutoff नहीं हुआ. ओके ओके। सो प्रणव, इन्वायरमेंटल इंजीनियर से रेगुलेटरी बॉडी, फाइनेंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, ये सब बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। अ, इस तरफ आने का कैसे, व्हाट व्हाट मेड यू टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ दीज एग्जाम्स? Yes. So this was also one of the questions in my interview. Everyone asked me, यही सब लोग यही पूछते हैं. But honestly, in my college, when I was in IIT Bombay, right from first year, we had a lot of freedom. We had a platform to explore anything that we wanted to. So हमारे कॉलेज में भी है फाइनेंस क्लब जहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं. इंडस्ट्री के सीनियर्स आते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैड मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज के लीडर्स वो आके सेमिनार्स देते हैं, वर्कशॉप करते हैं. सो दैट्स हाउ आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू फाइनेंस. सो राइट फ्रॉम माय फर्स्ट ईयर आई वाज वेरी क्लियर दैट मुझे फाइनेंस में ही करियर बनाना है. And I was looking for the opportunities accordingly. So after I graduated, after a few months, I was exploring what are the possible opportunities at my disposal, and that's how I came across these regulatory board examinations, and I decided to start my preparation. Okay, okay. Did you try for RBI and other regulatory body as well? Sir, I was very focused towards finance, and SEBI directly aligns with that field, so I was completely oriented towards SEBI. Okay, okay, okay. So, one question generally being asked by the every aspirants, future aspirants who are preparing for these exams. What course you followed the for this SEBI grade examination? Sir, I used the Vijay batch course from ICGP, but however, I gave mocks of every platform. So the logic was that I wanted to explore as much as questions possible because everyone has some kinds of unique questions. So that's the reason why I explored mocks across every platform. But if you ask me the content, my go-to content was always the Vijay course because the day I started preparation, I told myself that okay, I'm going to stick to only one course. I want everything under one umbrella. So that was my requirement, and that's the reason why I decided not to look into so many things because I believe in finance there is a famous saying, over analysis is paralysis. So I decided not to commit the same mistake in my preparation. Okay, okay. सो प्रणव, जैसे आईएफएससी मेंस नहीं हुआ था एंड पीएफआरडीए फाइनल कट ऑफ भी मिस हुआ था, तो कई बार ये भी लगता है ना, एग्जाम प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि नहीं इसमें तो मेरे फील्ड का एग्जाम भी नहीं है एंड आई एम फेसिंग चैलेंज, आई शुड स्विच टू अदर एग्जाम्स और आई शुड लुक अदर ऑप्शंस। तो कभी आया ऐसे माइंड में? सर डेफिनेटली मेरे फील्ड का एग्जाम नहीं है बट द करिकुलम और द सिलेबस दैट वी हैव इन द एग्जाम इट इज समथिंग व्हिच आई रियली एंजॉयड स्टडीइंग बिकॉज सिंस आई एम इंजीनियर इट माइट साउंड दैट ऑन पेपर मेरे को ये काफी नया है कॉमर्स अकाउंटिंग बट आई वाज स्टडीइंग दिस सिंस माय कॉलेज डेज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. So I was pretty much familiar with this, but when I missed PFRD by very small margin, I mean, very minute margin. So of course there was some disappointment. But however, the PFRD exam also gave me some confidence. So if you look at my English descriptive marks, I scored 67 and I was the highest. So that gave me confidence ki, okay, I'm doing very good in English descriptive, which will help me in further exams. If you look at my interview marks in PFRD, I had very good score. I mean, I got 11.7 marks out of 15. So these two things give me confidence that yes, I can do well in coming exams. So disappointment to no doubt there was disappointment, but at the same time I decided to look at positives. जो भी positives है वो मैंने लिए and I moved forward. ओके 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 प्रणव, सो डेली रूटीन क्या था, कितने आवर्स स्पेंड करते थे प्रिपरेशन में? और सीबी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? क्योंकि पीएफआरडी इंटरव्यू दिया था तो यू वर वेल प्रिपेयर्ड आई थिंक। सर
सो माय डेली रूटीन वाज वेरी मोनोटोनस। एवरी डे सेम रूटीन, सुबह उठो, करंट अफेयर्स पढ़ो, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे प्रैक्टिस करो, आरसी प्रैक्टिस करो। एंड आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन February 25 लास्ट ईयर। सो टिल द डे आई गिव मेंस, रादर टिल द डे आई गिव इंटरव्यू, मेरा सेम रूटीन था। सुबह उठो, करंट अफेयर्स पढ़ो, वही वही चीजें रिवाइज करो, जो नहीं आता है वो पढ़ो। सो आई फॉलोड प्रीटी मच सेम रूटीन फॉर 1 year। ओके ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पेपर टू की ही बात करेंगे। यस। पेपर वन इजी होता है, इजिली 30 मार्क्स ही लेने होते हैं ओवरऑल आपको पेपर वन में 100 में यस। से, तो इजी इजिली सब मैनेज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो मेन आता है कि पेपर टू, पेपर टू यस। में 6 मेन सब्जेक्ट्स हैं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है आपका, यस। कंपनीज एक्ट है, कोस्टिंग है, मैनेजमेंट है, फिनांस है, और इकोनॉमिक्स है। 6 सब्जेक्ट्स, काफी सारा सिलेबस है, बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की ही, एंड यस। कोस्टिंग की। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी आते हैं। तो व्हाट स्ट्रेटजी यू फॉलोड कि आपको थ्योरी भी, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी करनी है, बीइंग एन इंजीनियरिंग, हाउ डिड यू टैकल दिस? So yes, being an engineer, I was heavily inclined towards finance right from day one. So I used to analyze companies' financial statements. So मेरे को थोड़ा background था कि how I'm going to analyze balance sheet, how I'm going to analyze P&L, and I was aware of the basic terminologies. What is stock split, what is bonus share, what is authorized capital, all those stuff. So मुझे basic basic चीजें पता थी। Now coming back to core commerce and accounting, जो भी accounting concepts है, जैसे AS3 हुआ, AS9 हुआ, that was completely new to me, and that really blew my mind. I mean, I was not able to understand few concepts in initial days, but I told myself, okay, this is something which I had not studied till now. This is very new for me. So I will give some time. I will give some time to look into these concepts. I referred to YouTube videos. There are, I mean, these days we have access to AI models, right? So we can ask doubts to them, no matter how basic they are. So that's how I studied commerce, and that's how I studied accountancy, and ओके। same logic for costing as well. एंड एनी स्पेसिफिक टॉपिक्स फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट यू फोकस्ड? So I practiced numerical as much as possible because see, numerical में क्या होता है कि तुम कितने भी कर लो, बट अगर तुम्हें थ्योरी पता नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे एग्जाम में क्वेश्चन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे जो बेसिक कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होने चाहिए। अगर तुम्हारी थ्योरी स्ट्रांग है तुम कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, राइट? सो आई इंश्योर्ड कि मेरे जो बेसिक्स है, मेरी जो थ्योरी है वो मेरी बहुत स्ट्रांग है, और एक बार वो कवर्ड था, देन न्यूमेरिकल्स वाज क्विक वॉक फॉर मी। और इस बार तो जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग था, वो उनको काफी फायदा मिला, क्योंकि पेपर कॉन्सेप्चुअल था, यस। स्टेटमेंट यस। बेस्ड था। यस। यस। न्यूमेरिकल एवन कम थे, बल्कि बट पेपर पूरा ही कॉन्सेप्ट बेस्ड था। एवन चाहे आप यस। फाइनेंस हो, कॉमर्स अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स यस। हो। यस। यस। Yeah, coming from engineering background, I personally love numericals. I was praying कि भगवान प्लीज न्यूमेरिकल दे दो मेरे को पेपर में, बट अनफॉर्चुनेटली हमें बस एक या दो ही न्यूमेरिकल आए थे, दो आए थे। एक कॉस्टिंग का था और एक AS9 का था। बट यस, पेपर वाज वेरी टेक्निकल, वेरी कंसेप्चुअली चैलेंजिंग। अगर तुमने ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो नहीं होने वाला था। सो यू नीड रियली गुड कमांड और गुड इस गुड बार ग्राफ्स ओवर कंसेप्ट्स। रटिफिकेशन डिड नॉट वर्क, मतलब नहीं जो नहीं नहीं रट के जाते थे उनके लिए फायदा नहीं हुआ, नहीं क्योंकि इस नहीं बार नहीं। पूरा यस। कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आया। दैट यस। इज अ गुड थिंग आल्सो कि आपका। यस। यस। यू आर रिवॉर्डिंग द हार्ड वर्कर्स। यस यस यस। अब बात करते हैं हम फाइनेंस की। फाइनेंस, यू लव द फाइनेंस एज यू यस। टोल्ड। सो यस। फाइनेंस में मुझे लग रहा है कि आपको चैलेंज नहीं आया होगा। नहीं नहीं, एंड मोस्टली सिलेबस तो मेरा पहले से ही कवर था, बिकॉज मैं कॉलेज में पढ़ते ही आ रहा फाइनेंस। सो फाइनेंस के लिए आई डिडंट डू मच, एवरीथिंग वाज ऑलरेडी कवर्ड। आई थिंक अगर आप फाइनेंस देखो, जितने भी एस्पायरेंट्स है, अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी की प्रिपरेशन कर रहा है, आई थिंक फाइनेंस इज द बैकबोन। हर यस। यस। एग्जाम में अगर आप यस। मोस्टली चीजें फाइनेंस में पढ़ते ही हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कहीं ना कहीं रिलेवेंस है, चाहे आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो, चाहे आपका कोस्टिंग हो, कुछ टर्मिनोलॉजीज का यूज होता है। कंपनीज एक्ट है, बहुत सारी चीजें ओवरलैप करती है कंपनीज एक्ट में भी, जैसे कि आपका पूरा यस। आईपीओ यस। यस। प्रोसेस है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट आप पढ़ते हो, उसकी बहुत सारी चीजें आपकी कंपनी एक्ट में भी ओवरलैप करती हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कंपनी एक्ट पूरा फैक्चुअल डेटा बहुत भरा हुआ है, मतलब आप देखोगे तो वो कैसे क्रैम किया, मतलब उसमें तो पूरा क्रैमिंग टाइप का ही रहता है। क्वेश्चन भी वैसे ही पूछे जाते हैं कि एनसीएलटी का बारे में पूछा गया तो या तो चेयरमैन की एज पूछ लेते हैं, या फिर नंबर ऑफ डेज कि आप एनसीएलटी से एनसीएलटी में कितने दिन में अपील कर सकते हैं, एनसीएलटी के ऑर्डर पे कितने दिन में अपील कर सकते हैं, यस। प्रोस्पेक्टस जो फाइलिंग है उसकी टाइमलाइंस हैं बहुत सारी,
बोर्ड मीटिंग की टाइमलाइंस हैं, नंबर ऑफ डेज, जनरली हर जगह यही डिस्कस होता है कंपनी एक्ट में, और काफी Yes, yes. कंफ्यूजिंग भी रहता है कि नंबर ऑफ डेज, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट पार्ट? Yeah. So I would like to share one method that I used. It is called as active recalling. So मैं क्या करता था, जैसे तुम्हारे कोर्स में देयर वुड बी पीडीएफ्स, राइट? सात सात टॉपिक है, सात पीडीएफ्स होंगे। सो पीडीएफ में एआई पे अपलोड करता था, फॉर एग्जांपल क्लाउड, और उसको बोलता था कि मेक अ 100 क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द पीडीएफ। सो एवरी डे आई यूज्ड टू आंसर दिस क्वेश्चंस, न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? सो हर बार जब मैं उसको पीडीएफ दे रहा हूँ, वो न्यू क्वेश्चंस बना रहा है 100। सो फॉर 2-3 मंथ्स मैंने यही किया। एक दिन एक पीडीएफ उठा, उसको अपलोड करो और क्वेश्चंस बनाने बोलो और कौन सा आंसर करो। सो एक्टिव रिकॉलिंग से क्या हुआ कि आई वाज फोर्सिंग माय माइंड टू रिकॉल कि मैंने क्या पढ़ा है। तो उससे जो भी फैक्ट्स है, जो भी नंबर्स, जैसे आपने बोला कि प्रोस्पेक्टस कितने दिन पहले सबमिट करना है, एनसीएलटी को से एनसीएएलटी से कितने दिन में जा सकते हैं। सो ऑल दिस स्मॉल स्मॉल नंबर्स जब मैं डेली आंसर कर रहा हूँ, तो एकदम परमानेंटली मेरे माइंड में फिट हो गए थे। सो नाउ आल्सो आई कैन रिकॉल इट इज 45 डेज और 60 डेज ऑफ टाइम, राइट? यस, ये फैक्ट्स हमेशा रिमेम्बर करने की ना, दिस इज द बेस्ट टेक्निक। आप क्विज यस, अटेम्प्ट करो, मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो वो रिकॉल हो जाता है। अगर कोई गलत यस, हुआ है तो यस। उसका सॉल्यूशन देखो, तो फिर वो इजीली आपका रिकॉल हो जाता है। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस आल्सो। Correct, correct. So active recalling really helped me, and I would like to suggest everyone who is watching this video, do practice active recalling wherever there is lot of rectification. वहाँ पे active recalling will definitely help you. Okay, now what about the management and economics? How did you manage these two subjects? Yeah, so I'll start with economics. So economics is something which I tried to relate with finance. So उससे मुझे काफी हेल्प हुई। So and economics is very technical as well, right? And coming from engineering background, I love logical thinking. I love technical thinking. So that really helped me. Management was completely new to me. I mean, I had zero background of management. So yes, it took some time to absorb whatever is being taught. But over a period of time, जैसे जैसे I used to set very small targets for a day. आज मैं इतना ही पढ़ूंगा, कल मैं उतना ही पढ़ूंगा. So that's how I covered management. But it took around me 3-4 months for management to complete entire syllabus. It was challenging. बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे थे कि आईसीआई आईसीएमआई से काफी क्वेश्चंस आ रहे थे। इस बार Correct. नहीं हुआ, इस बार ऐसा नहीं हुआ। बट तो उस चक्कर में क्या था, स्टूडेंट स्टार्टेड फॉलोइंग द आईसीआई आईसीएमआई बुक्स। डिड यू फॉलो Correct. दैट? सर एक्चुअली मुझे इसे पता ही नहीं है, कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। आईसीआई क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। सो आई आई डोंट नो इफ इट इज, आई एम लकी दैट मुझे पता नहीं है, बट मैंने तो ये कुछ पहली बार सुन रहा हूँ उसको। फॉलो नहीं है मैंने कभी। ओके, ओके। और दूसरा ये कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है, वन मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, आप भी स्टूडेंट है, तो कई बार ये आता है ना कि आप एक ही सोर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो यस, फिर कई बार ये लगता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का, कि नहीं दूसरा सोर्स में पता नहीं क्या मिस हो जाए मेरा, तो दो तीन कोर्स सब्सक्राइब कर लेते हैं। इट इज जनरल टेंडेंसी मैंने देखा है कि, करेक्ट। तो सो ऐसा कुछ आया कभी माइंड में कि नहीं मुझे दो तीन कोर्स और सब्सक्राइब करके सबसे पढ़ना चाहिए? सो लकीली आई हैड पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो मैंने जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर किया, जेई मेंस के लिए प्रिपेयर किया। सो तभी भी आई रियलाइज्ड कि आई यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। इट इज ये समुद्र है, ये एक सागर है। यू कैन नॉट टेस्ट एवरी ड्रॉप, राइट? कोई एक ही किताब उठा लो या एक ही सोर्स उठा लो, उस पे डटे रहो, उसको ही पूरा कंप्लीट करो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम इधर से थोड़ा कर रहे हो, उधर से थोड़ा कर रहे हो, उधर से थोड़ा कर रहे हो, बिकॉज हर एक की एक पढ़ाने की स्टाइल होती है, राइट? आप एक अलग स्टाइल से पढ़ाओगे, कोई और टीचर एक अलग स्टाइल से पढ़ाएगा, राइट? सो द पॉइंट इज कि इफ यू स्टिक टू द वन सोर्स, तुम्हें एक पढ़ने की आदत बन जाएगी उस स्टाइल में, राइट? एंड इफ यू अगर तुम्हें फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है कि क्या उस कोर्स में ज्यादा कुछ और पढ़ा रहे, क्या कुछ अच्छा पढ़ा रहे, देन यू कैन, जैसे मैंने किया, कि मॉक्स बाय कर सकते हो। मॉक्स में एवरीवन कवर्स एवरीथिंग व्हाट दे टॉट, राइट? सो यू विल गेट ऑल दी सेट्स ऑफ क्वेश्चन। सो अगर तुम्हें लग रहा है कि यू आर मिसिंग आउट, देन यू कैन गो फॉर मॉक्स, बट yeah, that is not actually required, but yeah, mocks can really help in that case. ओके, 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 ओके। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश Yes, डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो 100 मार्क्स है, अच्छा खासा रोल प्ले करता है। yes. तो व्हाट स्ट्रेटजी स्पेसिफिकली फॉर द एसे प्रिपरेशन, एसे प्रैक्टिस, और हाउ डिड यू अटेम्प्ट इन द एग्जाम? सर ऐसे के लिए मैंने पास से पेपर एनालाइज किए कि वो कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं।
कौन से वर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो आई गॉट टू नो कि देयर आर वर्टिकल्स लाइक एआई, टेक, इंडियन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, राइट. सो मैंने ये वर्टिकल्स नोट डाउन किया एंड आई क्रिएटेड 7-8 पॉइंट्स ऑफ एवरी वर्टिकल. सो फॉर एग्जांपल एमएसएमई, उसके मैंने 7 पॉइंट्स लिख लिए मेरे नोट्स में और वो मुझे याद है. तो जब मैं एग्जाम हॉल में जा रहा हूँ और मुझे टॉपिक आ गया एमएसएमई, सो मेरे पास 7-8 पॉइंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. सो 7-8 पॉइंट जब मेरे पास है तो उसके अराउंड आई कैन इजीली राइट 400 वर्ड्स, राइट. So that's how I prepared essay. So once you have that 7-8 points ready in your mind, you can create a 400-word essay around that, correct? So this is what I followed for essay. Apart from that, I used to write at least one of essay, pressy और आरसी. इन तीनों में से कुछ एक मैं डेली प्रैक्टिस करता था. So let's say today आज मैंने essay प्रैक्टिस किया तो कल मैं आरसी प्रैक्टिस करूंगा, परसों मैं प्रेसी प्रैक्टिस करूंगा. एंड आई यूज टू रिपीट दिस साइकिल. एंड ये मैंने अराउंड 3-4 महीने किए. दैट्स हाउ आई डिड प्रैक्टिस फॉर पीएफ दिस डिस्क्रिप्टिव पेपर. ओके ओके. एंड प्रणव, फाइनल जो आपका स्टेप रह जाता है इंटरव्यू, आई मीन लेस वेटेज है 15, बट स्टिल इट मैटर्स क्योंकि आपका पॉइंट टू Yes. फाइव मार्क्स भी आपका Yes. सिलेक्शन डिसाइड कर देता है. Correct, correct. ओके, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द बोर्ड? What type of question they ask from you? And you were from engineering background and was going to SEBI, so Yes. So I was asked around 14 questions. So I'll just go through kind of questions that were asked to me. The first was introduction. Second was family background. Then they, since I am from IIT Bombay, they asked me, "Don't you think you are wasting seat of IIT by coming in this field?" देन उन्होंने पूछा कि तुम एनवायरनमेंट से हो, फाइनेंस में क्यों आ रहे हो? फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट शुड यू एंड सिंस आई एम फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड, मैंने बोला था कि आई कैन अंडरस्टैंड समवन एल्स पर्सपेक्टिव, आई कैन थिंक प्रॉब्लम बाय कीप इमेजिनिंग माई सेल्फ इन योर शूज. सो आई कैन डू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज अ टीचर. सो उन्होंने पूछा कि हम इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था. अ, उसके बाद उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, व्हाट आर रेट्स, डू यू इन्वेस्ट, एक करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आ रहा था. सो आई सेड सॉरी आई डोंट नो. सो इंटरव्यू अराउंड 13-14 मिनट चला एंड देयर वर 14 क्वेश्चंस, 14 did they 15 ask क्वेश्चंस. ESG? ESG, did they Yes, ask? yes, yes, yes. They asked Because you were ESG. from environment background, Yes, so yes. I thought I was expecting that they would have asked me this question. Yes, yes, yes. Okay, okay. Yes, yes. Green finance भी पूछा था, what is green finance? What is sustainability? Do you think sustainability and economic development are contradictory? भी पूछा था. Okay, okay. So, Pranav, most of the things we have covered in this Yes. session. So, any learnings from your preparation journey you would like to share with the future aspirants? सर, मैंने आज एक लिंक्डइन पोस्ट भी किया है, उसमें मैंने एक लाइन लिखा है कि रिजल्ट इज द सेकेंडरी पार्ट, इट इज जस्ट आउटकम, मतलब वन ऑफ द आउटकम्स. बट द एंटायर प्रिपरेशन जर्नी ने मुझे इतना नॉलेज दिया है, इतना मुझे अच्छा बिल्ड किया है कि इवन इफ आई गो टू एनी जॉब इंटरव्यू टुमारो, आई विल बी एबल टू क्लियर दैट. इट हैज completely transformed me as a person. So if any aspirant who is planning to take up these examinations, don't only look at the outcomes. Of course, outcomes do matter, but the kind of learning curve, the kind of exposure that you will get while preparing, it is something which will transform you as a person. And I must say that despite being from IIT Bombay, मुझे ये प्रिपरेशन ने जितना कॉन्फिडेंस दिया उतना मुझे कॉलेज ने भी कॉन्फिडेंस नहीं दिया है. Okay, okay, thank you. एंड प्रणव, सीजीबी के बारे में ही बात करते हैं कि हाउ डिड यू गो फॉर सीजीबी? मतलब इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं कि मुझे सीजीबी का ये विजय कोर्स लेना है, क्योंकि So, so yeah, these days हाँ, algorithm works very fastly, right? आपके मन में क्या है वो algorithm पहले ही पढ़ लेता है. So they start recommending you on YouTube, right? So YouTube पे I was just browsing through regulatory body preparation, कैसे करना है, क्या करना है, syllabus क्या होता है, कहाँ से पढ़ना है. So I just got few channel recommendation. So जैसे मुझे channel recommendations मिले, I went through Quora, I went to Reddit, I asked my seniors ki, where should I go, what should I do? They recommended me ki you can look at CGB. We had really good experience in the past. You can think of it. So yes, so I decided, okay, okay, I am getting good few positive reviews about particular platform, then I should give it a try. So that's how I got into CGB. Also, okay, you are the top 100 MCQ questions. They are really famous among aspirants. So everyone used to say that you will get top 100 MCQs before every exam, which are really good source to revise content, right? So yeah, these were the quite few reviews that I read before selecting the course.
Okay, okay. So, Pranav, any advice you would like to share with future aspirant, or you would like to give them? Yes. So yeah, as I already said, don't only judge your preparation journey by outcome. Think of it as a knowledge gaining journey, which will help you. Even if you don't clear this exam, it will really help you to excel in life. Okay, okay. So, Pranav, thank you for this session, and you have given a wonderful insights of your preparation journey. And definitely, it will motivate the aspirants also, because some of non-commerce background students think that they may face challenge in this exam, but you are an example. You have cleared this CB grade exam in the first attempt itself. So, Yes. thank you for Thank you, sir. Thank you so much. this wonderful session, and I wish you good luck for your new journey at SEBI. Uh, Thank you so much, sir. Thank you. okay, okay. Thank you, Yes. Pranav. Thank you, sir. Thank you. Bye. Okay.